उसका मैं डेटा फिर से एक बारी लिख रहा हूँ. W1 was equal to 15725.8 tons. This was my W1, and my KM1 was 8.238 meters. This is what I started off with my final condition as. So KM1 मेरा 8.238 है, minus the kg, that is my that is 7.263 meters. ये मेरे को कहाँ से मिलेगा? कंडीशन नंबर 8 से मिलेगा, जो मेरी इनिशियल कंडीशन थी. इज दिस ओके विद एवरीवन? यस सर. ये मुझे देता है GM1 सॉलिड. तो निकालो. सर 9750.975. हाँ जी, 0.975 आ रहा था. 0.975. This is my GM1 solid. Now my FSC 1. So FSC 1 is equal to FSM upon W1. Now FSM I will get from condition number 8, left hand side, last column. That will be my FSM, because conditions में मुझे दिया हुआ होता है. So condition number 8, left hand side table. So 1372. करेक्ट. ये समझ आ गया कहां से लेना है? दैट इज द FSM अपॉन W1, 15725.8. सर 0.087. Okay. So minus FSC 1, 0.087. This will give me GM1 fluid. सर 0.888. Now I calculate the virtual loss of GM is equal to P into KM1 upon W initial. So P जो मैंने निकाला है 407.2 into KM1, which is the nearest KM in time, which I found out, 8.238 upon W initial. Please remember, virtual loss में denominator में हमेशा W initial ही रहेगा. Please remember that. V loss के फॉर्मूले में W initial रहेगा. Upon the W initial, which is 16133. .208. और इसका एक रीजन है.
रीजन ये है कि कॉन्सेप्ट ये है कि डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स कांस्टेंट, द km keeps changing. This is based on that principle. I repeat, the displacement remains constant, the km keeps changing, and the km is changing because the water line is changing. That is the logic. सर एक चीज पूछनी थी यहाँ पे सर, आप जो बोल रहे हैं km की वैल्यू इज द नोन टू द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइन, बट सर ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, क्योंकि हमारे पास ड्राफ्ट है फाइनल पोजीशन के। वही नियरेस्ट वाली हो गई, एग्जैक्ट हो गई। ये तो एग्जैक्ट ही होगी ना सर। इस वाले में वो हो गई, इसमें एग्जैक्ट होगी, हाँ वही वही, ठीक है सर, इस वाले में एग्जैक्ट हो गई। वही पूछना था। ठीक है, किसी और को कोई डाउट तो नहीं है इस चीज में जो भी हमने अभी डिस्कस करा है? ओके, सो 0.208 यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये मेरे को VGM या RGM दे देगा, VGM1 फ्लूइड। सर 680। This is the VGM of the vessel then at the final water line. Any doubt up till now? सर ये जो वर्चुअल लॉस ऑफ जीएम लिखते हैं, दिस इज, ये हम ऐसे लिखते हैं ना, वर्चुअल लॉस ऑफ GM1 करके। Correct. इसको It's the same thing. so, Virtual loss of GM or GM1, we are meaning the same thing. So that is why okay sir, we are meaning the same thing. ठीक है सर, क्लियर है सर। Okay. So ये हमारी वर्चुअल लॉस हो गई। ओके, फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट कहता है एंगल ऑफ हील इफ शी ग्राउंड्स 2 meters to starboard of the center line. अभी नोटिस द वर्ड एंगल ऑफ हील, लिस्ट नहीं बोल रहा, एक्सटर्नल फोर्स। Okay, it's not a list. So when you get grounded, you heal because there's an external force which is acting on the ship. Okay. तो मेरा जो लिस्ट का फॉर्मूला है, tan theta is equal to GG1 upon GM fluid. This is my basic formula of list. GG1 is nothing but WD by W into GM fluid. Correct? Is that okay? Small w is the weight which is getting discharged, which is causing the list. So that in our case is P. ये हमारा P हो गया. D is the distance which is causing the list or the distance from center line. W1 is the condition in which I am in at that point in time into VGM1 fluid, my GM of the vessel then. So this becomes my basic formula. So let me start putting the data now. P is 407.2 tons. D, question मुझे कहता है it gets grounded 2 meters to starboard of center line. So 2 meters. W1, that is 15725.8 into VGM1 fluid of the vessel then 0.68. So therefore calculate theta by doing a tan inverse.
Sir, 4.355. ओके, अब ये जो जहाज है मेरा, ये इट हैज गॉट ग्राउंडेड 2 meters टू स्टारबर्ड, तो स्टारबर्ड से पी एक्ट करेगा, तो इसका मतलब मेरा जहाज किधर जाएगा? पोर्ट साइड। पोर्ट साइड जाएगा। ये समझ में आ गया कि नहीं? हाँ जी, एनी डाउट्स ऑन दिस? Is this okay with everyone? ठीक है सर। Okay, ठीक। So अगर had she got grounded to the port, then it would have been a starboard heel. Then the angle would have been to starboard. Okay. अब last part of the question. Last part of the question says, the rise of tide required for her to refloat. अब इस चीज के हमने अलग अलग कई 3-4 नाम लिखे थे, अगर आपको याद हो। राइज ऑफ टाइड रिक्वायर्ड फॉर हर टू refloat के हमने शिप में कई नाम लिखे थे हमने एक ही चीज के। Do you remember those names? चेंज इन वाटर लेवल सर। Correct. Required for her. चेंज इन टाइड भी शायद लिखा था। देखो, चेक करो सारे अपने नोट्स खोलो। अब इसके मुझे 4 नाम बताओ, या 3 या 4 नाम। प्लीज ओपन अप योर नोट्स एंड go to A-ship grounding and tell me the names of the same thing. क्या क्या है इसके नाम? Change in draft at point of grounding. Very good. So that's the first thing. This is equal to change in draft at the point of grounding. All right. Next one. Give me another name. So fall in water line after contact. Correct. Fall in water line after contact या grounding, एक ही बात है।
और कुछ? और कुछ? Change in dot water height या hydrostatic draft. क्या 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 बोल गए? क्या बोल गए? fall in tide एकदम right. Please mute yourself. Please mute yourself. These are the names of the same thing. Fall in tide, fall in waterline after grounding, change in draft at the point of grounding, rise of tide required for her to refloat. चारों एक ही चीजों की बातें करते हैं। तो इन सब में से मैं ये वाला पॉइंट उठा लेता हूं, चेंज इन ड्राफ्ट एट द पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग, और इसको फाइंड आउट करता हूं। कैसे फाइंड आउट करता हूं? आई नो द फॉर्मूला फॉर ड्राफ्ट एट सेंटर ऑफ रोटेशन, दैट इज ड्राफ्ट आफ्ट minus for stern trim plus for Trim LC. trim into LCF और AF एक ही बात है upon LBP. This is my formula for hydrostatic draft. So from this formula, I derive my draft at the point of grounding for the first water line. Draft aft minus trim kg. PG upon LBP. This gives me my draft at the point of grounding for the first water line. In the instant जब मैं पहले ग्राउंड किया था कंडीशन नंबर 8 में, ये मेरा ड्राफ्ट था, तो उसको निकालो। तो कंडीशन नंबर 8 में जाओ, वहां से ड्राफ्ट आफ्ट निकालो, कंडीशन नंबर 8 में जाओ, वहां से आफ्ट ड्राफ्ट निकालो, एंड वहीं से ट्रिम भी निकालो। Sir, 8.860 draft. 8.860 और उस वक्त ट्रिम क्या थी? 2.157. कंडीशन नंबर 2.157. इंटू AG, ये हमने सेकेंड पार्ट में निकाला था 128.334 divided by 143.16. Sir, 6.926. 6.926. This is my draft at the point of grounding for the first water line in condition number 8. जब मेरा आफ्ट ड्राफ्ट 8.86 था, मैं कंडीशन नंबर 8 में था, उस वक्त मेरा ड्राफ्ट ये था। Now I go to the second water line, DG1. जब टाइड गिर गया तो DA1 minus trim 1
into AG1 upon LBP. For the second water line, my draft aft is given to me in the question is 9.30 meters. My final trim is 3.4 meters. My point of grounding has not changed, so that has remained the same. $6.252. Therefore, the rise of tide required for her to refloat 0.674. will be greater than dg minus dg1, will be greater than 0.674 meters. Is this okay with everyone? ये समझ में आ गया है कि हमने क्या क्या किया है? ये वही हमने जो ए शेप में किया था उसी को रिपीट किया मैंने दोबारा, ताकि वो रिवीजन हो जाए. Sir, ये 128.334 that is the Point of grounding. point of For- grounding. Forward of aft perpendicular. ये तो हमको सर वो कंडीशन 8 से मिलेगा ना सर ये वैल्यू? नहीं, पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग वाज अननोन, तो हमने सेकंड पार्ट में हमने ये निकाला था, तो लॉन्जिट्यूडनल मोमेंट्स करके. तो मिल गया सर. जो हमने लॉन्जिट्यूडनल मोमेंट्स करा था और वो एलसीजी को इक्वेट किया था फाइनल एलसीजी 1 को, उससे मिला था हमें एक्स की वैल्यू. यस सर, मिल गया सर. सो हाँ जी, एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? क्लियर है ये? सो हिंज शेप की ग्राउंडिंग में हमेशा याद रखना, ये जो 5 पार्ट किए हैं हमने, इनमें से या तो 2 पार्ट आ जाते हैं या 3 आ जाते हैं या 5 आ जाते हैं. राइट? एंड जस्ट रिमेंबर द लास्ट वन विच आई हैव रिटन 4 नेम्स ऑफ इट. कोई भी एक चीज पूछी जा सकती है आपसे, उसमें लिखा होगा फॉल टाइड. फॉल टाइड विल बी 0.674. उसमें लिखा होगा द चेंज इन ड्राफ्ट एट द पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग, डीजी डिफरेंस डीजी1 0.674. फॉल इन वाटर लाइन 0.674. मतलब ये वर्ड्स हैं,
एक ही चीज को तोड़ मरोड़ के, मतलब पूरा घुमा फिरा के इसी तरीके से आपको कंफ्यूज करने का तरीका है। तो आप यू जस्ट रिमेंबर वन थिंग, बस ये एक ही है भैया, चीज तो एक ही है, डीजी डिफरेंस डीजी1। इसमें कॉमन मिस्टेक जो लोग कर देते हैं पेपर में, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट्स का डिफरेंस निकाल देते हैं। दैट इज द मिस्टेक, वो मत करना। ये हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट 1, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट 2, डोंट डू दैट, दैट विल बी अ प्रिंसिपल एरर। सर ये हिंटशिप में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 92 से 97 तक। मतलब ग्राउंडिंग की बात कर रहे हो कि ओवरऑल बात कर रहे हो? ओवरऑल सर, किस ओवरऑल। किस चीज की बातें कर रहे हो ये बताओ ना। बातों पे डिपेंड करता है सारी चीजों का आजकल। सर ओवरऑल ही पूछ रहा हूँ मैं तो, पास होने के लिए सर। पास होने के लिए तो यू रिक्वायर, एज फार एज स्टेबिलिटी इज कंसर्न्ड, यू नीड टू डू अप टू क्वेश्चन नंबर 99। अप टू क्वेश्चन नंबर 99 फॉर स्टेबिलिटी। ओके सर ये सेकंड मिनट्स वाले भी कवर करने पड़ेंगे फिर से? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल करने पड़ेंगे। एटलीस्ट वो ट्रिम वाले तो कर लेना, कम से कम रिवाइज कर लेना उनको। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर, basically if you do from question number 60 onwards, then you're okay. Question number 60 onwards. आंसर जो ये स्टेबिलिटी 1 का बुकलेट है उसको भी करना है सर? स्टेबिलिटी 1 को नहीं, रहने दो, वो मैं बीच में रिवाइज कराता जा रहा हूँ आपको। सारा ही कुछ एक्चुअली रिवीजन चल रहा है, बट ये कुछ क्वेश्चन लिख लो आप लोग, ये आपको मदद करेगा हिंशिप के। जस्ट राइट डाउन दीज क्वेश्चंस। दीज आर क्वेश्चंस व्हिच फ्रॉम हिंशिप, जो कि बेसिक प्रिंसिपल्स को टच करते हैं। ओके सो उनको एक बार आप कर लो, ये क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूं अब। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 50, 50, ये हैं आपके पुराने वाले क्वेश्चंस। इनमें हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई एक प्रिंसिपल को टच किया गया। ओके ये 60 से पहले वाले हैं, 60 से पहले वाले, और 60 के बाद वाले तो आपको, बिकॉज वो ट्रिम के रिलेटेड हैं, तो वो तो आपको करने ही हैं 60 ऑनवर्ड्स। सो दीज क्वेश्चंस जो मैंने आपको लिखवाए हैं, इनको एक बारी गो थ्रू देम so that you can revise your basics of सेकेंड मैथ्स। ये आपके कोई ना कोई एक बेसिक
चीज को टच करेगा। एंड जो आपका क्वेश्चन आते हैं जनरली वो हैं बेसिकली लोडिंग टू अ फाइनल ट्रिम, बिकॉज वो मीट का काम है, सिंगल पॉइंट लोडिंग जिसे कहते हैं। दैट मीन्स MV Hinship is floating in dock water 1010 at a draft forward 4 meters, aft 5 meters. From where should 200 tons be discharged so that she arrives on even keel in the final condition? A question like this. In the same dock water. तो सिंगल, इसको कहते हैं सिंगल पॉइंट लोडिंग या डिस्चार्जिंग। एक ही जगह से लोड किया या डिस्चार्ज किया और उसके बाद फाइनल ट्रिम पे आ गए। ये मेट का काम यस सर, होता ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ये मेट का काम होता है। तो ये जनरली जो हैं क्वेश्चंस हिंशिप में क्वेश्चन नंबर 70 to 78 की रेंज में दिए हुए हैं। 70 to 78 की रेंज में ये क्वेश्चंस हैं। तो इनको आप एक बारी कर लेना क्योंकि ये सेकेंड मेट के टाइम पे हुए थे। तो इनको एक बारी रिवाइज कर लेना प्लीज। 70 to 78। एट्टी ऑनवर्ड्स मत करना, वो मैं कराऊंगा। 80 ऑनवर्ड्स। ठीक है, इज दैट ओके? यस सर। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन मैं कर रहा था, तो जैसे आपने उस कल बताया था ना 200 टन्स वाला, तो उसमें पी की वैल्यू अराउंड 250 260 पास पेपर का क्वेश्चन था सर। तो 250 260 आ रही थी सर। अब फिर उसमें लाइक अब तो बॉर्डर लाइन जैसा ही है। तो उसमें क्वेश्चन में क्या ये लिखा हुआ है कि assume data remains constant? नहीं सर। हिंशिप का क्वेश्चन है। हाँ सर। ओके, सो भेजो एक बार ग्रुप में डालो सर। हाँ जी, क्वेश्चन जरा ग्रुप में एक बारी डाल दो, तो मैं एक बारी देख लूंगा कि क्या है क्वेश्चन के वर्डिंग्स। सर मैंने सर भी ये किया था। आपने 240 267 257 आई मीन 260 के आसपास ही आ रही थी कुछ वैल्यू। जब हमने P1 निकाला तो वही 2 टन का डिफरेंस आ रहा था, तो इट डजंट लेकिन मेक कर दिया P1। नहीं, करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। सो मैंने वो 200 एज अ बॉल पार्क फिगर बताया था आपको। इट डज नॉट मीन कि बैंग ऑन अगर 201 है तो मत करो और 199 है तो करो। मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट। My objective of telling you a figure of 200 was so it was to give you an idea कि ये वेरिएशन से कुछ फर्क पड़ना चाहिए। अगर वेरिएशन से फर्क नहीं पड़ रहा है देन मेरा पर्पस सारा डिफीट होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सर कैन वी अज्यूम कि मतलब W3 तक हम नहीं करें और W3 के बाद करें, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो W3 तो वहां तक तो पहुंचता ही नहीं है हम कभी। तो W3 तो बहुत ज्यादा आगे चले गए आप। मैं तो P and P1 पे ही अटका हुआ हूँ अभी भी। यस सर। आई एम स्टिल स्टक एट दैट लेवल। ओके सर। Sir, W3 is asking about the water line, sir. अच्छा, you're talking about W3 as a water line? हाँ सर, हाँ सर। सर ये तो सबके लिए ओके, एप्लीकेबल है ना। P1 तो वो तो- मतलब इटरेशन तो मतलब वाटर लाइन 3 वाटर लाइन 4 और एनी। इटरेशन तो कभी भी करनी है जब भी मीनिंगफुल हो।
it should substantiate into a substantial difference between P and P1. Then you will go ahead with it. आया नहीं बट इसमें। सर सब्सटेंशियल इन द सेंस लाइक सर वही 200 250 की बात आ जाती है फिर इफ इट इज वही लार्ज वैल्यू है बात वही आ गई कि सर 200 250 बट इन पौने द सेंस 300 लेकिन जब भी तो हम लोगों ने जो किया है सर आइटरेशन उसमें सर बीजीएम और जीएम रिक्वायर्ड पहले से मालूम था तो उस हिसाब से हमने बीजीएम और जीएम रिक्वायर्ड मतलब कि उन्होंने बोला कि बीजीएम इज 0 देन कैलकुलेट फॉर एन आप ड्राफ्ट यस सर उस केस में हमने आइटरेशन किया बिकॉज पी वैल्यू वाज 1000 समथिंग था सर उस टाइम बिकॉज जब VGM 0 होगा तो वाटरलाइन 4 की बातें हो रही हैं। यस सर सर दैट क्लियरली मोर तो ऑलवेज वाटरलाइन 4 पे तो डेफिनेटली P जो है वो 1000 से ऊपर होगा। सर ये हिंडशिप में एक लाइन लिखी हुई है सिंस द फोर्स P इज फेयरली लार्ज वी डू अ मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन अगेन यूजिंग द हाइड्रोस्टैटिक फेयरली लार्ज मतलब कितना लार्ज है वो वही जो हम कल बात कर रहे थे कि लेकिन सर डाउट ये था कि अगर वाटरलाइन 3 पे है तो अगर हम आइटरेशन करेंगे मींस में सर पी आ गया सपोज समथिंग 250 आ गया सो अगर आइटरेशन करेंगे तो सर W1 निकाल लेंगे उससे फिर W1 माइनस पी इसका W1 फिर इस W1 से हम LCF और MGDC निकाल के फिर अगेन P निकालेंगे ऐसे आइटरेशन करेंगे सर इसको the point across again I'm coming back to this thing is कि अगर 200 250 300 इस वाली रेंज में है P आपका तो आपका P1 जो है वो बहुत कम आएगा डिफरेंशियल। अब वो कम कितना है मतलब अगर 250 है तो प्लस माइनस 50 स्मॉल राइट उससे ज्यादा इज बिग तो इसलिए हम आइटरेशन नहीं करते हैं लेकिन अगर 400 से ऊपर हो जाता है तो हम करते हैं दैट इज द डिफरेंस। ओके सर अब उसको टू सब्सटेंशिएट मैं करूं या ना करूं यू नो दैट्स बिकॉज यू आर स्टक इन दैट जोन ऑफ कि मैं करूं या ना करूं। तो पास्ट बैचेस को मैं जो बोलता गया हूं अब टिल नाउ हैज बीन कि बिकॉज डाउट आपके मन में आ गया है तो इसलिए कर दो आइटरेशन। क्या होगा 5 मिनट आपके ज्यादा जाएंगे। जी सर वही अगर हम 200 वाला भी ले लेते हैं और कर देते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कर सकते हैं आ जाएगा। तो सही है। 5 मिनट आपके 5 मिनट ज्यादा लग गए 5-7 मिनट। इन एनी केस मैंने आपको ये बोला है कि ये क्वेश्चन पहले तो करना ही नहीं है आपने ये आपका ओपनिंग बैट्समैन है ही नहीं ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है राइट। ये आपका टेल एंडर है ओके ये स्लॉग ओवर्स में ये बैटिंग करेगा ये ओपनिंग बैट्समैन नहीं है। ये बात बड़ी क्लियर है अपने दिमाग में बांध लो। इज दैट ओके विद एवरीवन? कल एक क्वेश्चन पेपर में देखा सर उसमें तीनों पार्ट दे रखे थे इट टेक्स मतलब 40 मिनट्स कम से कम लग ही जाएगा तीनों क्वेश्चन पार्ट करने में। इसलिए कभी हालांकि आपको मैंने अच्छे तरीके से करा दिया है हालांकि आप बड़े कॉन्फिडेंट हो आपको ये पता भी है कि मेरे को आता है ये करना लेकिन ये बैट्समैन आपका ओपनिंग बैट्समैन नहीं है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बिकॉज शुरुआत में आई डोंट वांट यू स्टार्टिंग विद ऑन अ नोट वेयर आप शुरू में ही रिक्वायर्ड रन रेट इतना बढ़ जाएगा कि आप उसके बाद में चेज ही करते रह जाओगे और खुदा ना खास्ता बीच में कहीं एक ट्विस्ट आ गया या कुछ और हो गया तो यू विल गो अंडर टेंशन एंड वो पूरा का पूरा बाकी पेपर जो है सैक्रिफाइस हो जाएगा। आई डोंट वांट दैट टू हैपन। आई वांट यू गाइस बिकॉज ये पेपर हमें क्लियर करना है फर्स्ट शॉट बात खत्म और कर सकते हैं। इट इज जस्ट अ टैक्टिकल पिकअप ऑफ द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आप जो है ये आप क्वेश्चन नंबर 6 पे अटेम्प्ट करोगे
जब आपका छठा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा होगा, ताकि वो तब तक आपके पॉकेट में आपने ऑलरेडी 100-120 नंबर ले चुके हो, तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ भैया मैं पास हो रहा हूँ। अब तो ये मैं जो है, दिस इज ओनली द आइसिंग ऑन द केक। मैं तो अब ये बस बेसिकली अब इसके ऊपर मैं खाली आइसिंग लगा रहा हूँ कि और नंबर आ जाए। This is going to be our modus operandi for this, even though we are fully confident of this question. Because let's face it ना, मेरे पास खाली वही 22.5 मिनट है क्वेश्चन करने के, और मैं इसमें ऑलरेडी 40 मिनट लगा चुका हूँ, तो मैं तो इतना प्रेशर में चला जाऊंगा। 2 क्वेश्चन के टाइम लगा लिया मैंने इस पे, इसलिए ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन टाइप होगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 टाइप्स, and maybe question number 8 also. I'll be very happy if you do this as the last question, because उसके बाद में आप लिखते गए, करते गए, और जिस स्टेज पे उसने पेपर बोल दिया कि छोड़ दो, वहीं पे रोक दिया मैंने, तो मेरे को जिस स्टेप के मेरे को नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये है मेरा 30 नंबर का क्वेश्चन। तो 30 नंबर में से मैंने अगर बल्क ऑफ द क्वेश्चन भी कर दिया तो मेरे 20 तो वैसे ही आ गए। 4-5 पार्ट है, दैट मीन 6 मार्क्स पर पार्ट। तो अगर मैंने 3-4 पार्ट कर दिए तो मेरे 20 नंबर आ गए। आई एम ओके विद इट, आई एम वेरी कंफर्टेबल। 20 नंबर तो मेरे आ गए हैं ना। दैट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस द लास्ट। So we have to strategize to do the paper. Strategy बड़ी important है। मतलब पर्टिकुलरली यही क्वेश्चन सर ग्राउंडिंग वाला ना, जिसमें ये वाले पार्ट्स आते हैं सब? नहीं, हिंशिप की ड्राई डॉकिंग, हिंशिप की ग्राउंडिंग, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके सर ये जो आइट्रेशन था, मैं बात कर रहा हूँ हिंशिप की ड्राई डॉकिंग, हिंशिप ग्राउंडिंग। मैं हिंशिप की ड्राई डॉकिंग एंड ग्राउंडिंग की बातें कर रहा हूँ इस वक्त, बिकॉज चाहे आइट्रेशन हो या ना हो, वो लंबा ही प्रोसेस है। मतलब 35 मिनट कहीं नहीं गए आपके। आप फास्टेस्ट टू फास्टेस्ट करते हो 30, 35, 40 मिनट लगते हैं, क्योंकि हर पार्ट बड़ा लंबा बन रहा है। और अगर किसी क्वेश्चन में कंडीशन नंबर नहीं दी हुई है, सीधा हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट दिए हुए हैं या ड्राफ्ट फॉरवर्ड एंड आफ्ट दोनों दिए हुए हैं, तो मतलब 2 बार ही आप निकालोगे हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। इनिशियल का भी निकालोगे, फिर इनिशियल डेटा निकालोगे पूरा, फिर फाइनल निकालोगे, फिर फाइनल डेटा पूरा निकालोगे, तब शुरू करोगे क्वेश्चन। इसको करते करते ही आपके 15 मिनट निकल जाएंगे डेटा निकालते निकालते। अगर कंडीशन मिल जाती है तो एटलीस्ट कुछ एक इनिशियल डेटा तो पहले ही मिल गया ना मुझे, एक तो बच गया, वो तो सीधा ही निकाल सकता हूँ। बट अगर कंडीशन नहीं दी हुई क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन बिकम्स वेरी लेंथी, बिकॉज पहले हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकालोगे, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, फिर उसके बाद डेटा निकालोगे। तो ये समस्या का होता है। तो इसलिए ये चीजें देखनी होती हैं क्वेश्चन में कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड।